Let's start discussing our chapter number 6, that is physical and chemical changes. हाँ जी बच्चे, कल हमने इसमें फिजिकल चेंज किया था, क्लियर है सबको? द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इट इज टेम्परेरी. दिस चेंज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज. व्हाट इज अ केमिकल चेंज? Chemical change is a change which cannot be reversed. A new substance is formed, जिसमें टोटली न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे बर्निंग, बर्स्टिंग, बॉइलिंग ऑफ अ पोटैटो, डाइजेशन, जर्मिनेशन. और क्या एग्जांपल्स की थी हमने? एक एग्जांपल कल आपको समझाई थी, रस्टिंग. Rusting is basically a process of oxidation of iron objects. In this, iron objects, they will get a thin brown coating on its upper end due to the action of air and water. ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है, what are the necessary conditions required for the rusting? Necessary conditions क्या है? Air, water, and obviously iron का object if it is exposed to air and water. Sometimes the question will come, once an iron object is exposed to the air, it is kept open in the air, but it is observed that during rainy season the rate of rusting is faster. Why? During rainy season rate of rusting is faster. हाँ जी, बाकी नौनिहाल आपसे शुरू करें. चलो नेक्स्ट. Why rate of rusting is faster during rainy season? Because moisture. हाँ, due to increased amount of moisture the rate of rusting is faster. ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, that is Fe2O3 dot X water. X is number of molecules of water present in the rust. ठीक है. How can we protect our iron objects from being gets rusted? कौन कौन सी methods है that helps the iron objects from being gets rusted? Anyone from here? That is right. Jasleen, बताइए. Painting, allowing. हाँ जी, और and galvanizing. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट. समृद्धि, जलश, बिल्कुल ठीक है. हाँ जी, who will tell from here? तो फर्स्ट मेथड हम पेंटिंग ही बोले. पेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, और बाकी किसी और से पूछूं? एनी आइडिया? 3 बेसिक मेथड्स कराए थे, तीनों के आंसर्स यहाँ पे बच्चे ने टाइप कर दिए. हाँ जी, बॉय ऑयलिंग, ठीक है. ग्रीसिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है. ऑयलिंग की जगह मैं ग्रीसिंग वर्ड यूज कर रही हूँ. ग्रीसिंग से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है, तो उससे भी कुछ हद तक बट ये टेम्परेरी मेथड है. हाँ जी, रुक जाओ. Galvanization and alloying, these are some sort of long-lived methods. What is galvanization? हाँ जी हिमालय, ये बताइए, what is galvanization? बैठ जाए बच्चे, no need to stand. Galvanization क्या है? सिर्फ नाम याद था galvanization. यहाँ पे किसने टाइप किया था? चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे जसलीन आपने बताया था गैल्वेनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? कहाँ गई जसलीन? हाँ जी जसलीन. जलश, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? देख ली मैंने हैंड्स, कीप देम डाउन.
What is galvanization? Rudar. Ma'am, galvanization is applying coating of zinc. Yes, galvanization in short is a coating of zinc on an iron object. Very good. Sit down. Coating of zinc, thin layer of zinc on iron objects. Coating of thin layer of zinc on iron objects. And when the zinc is coated on this, naturally here the iron objects don't come in contact with air or water. And if they will not come in contact with air and water, they do not get rusted. And same happens during painting and galvanization, greasing. पेंटिंग और ग्रीसिंग में भी यही होता है, हम जस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक लेयर कोट कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, इट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद दीज टू, ये इन दोनों के साथ इसका कांटेक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल्स खराब नहीं होते. बट इस मेथड में क्या होता है, पेंटिंग और ग्रीसिंग में दे आर नॉट लॉन्ग. जब हम उनको कॉन्टिन्यूटी में उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पेंट भी खराब हो जाता है, ग्रीसिंग भी खराब हो जाती है, लेकिन जिंक की लेयर काफी टाइम तक निकल जाती है. और इसके अलावा एक मेथड आपको और कराया था, दैट इज एलॉइंग. याद है किसी को? व्हाट इज एलॉइंग? हाँ जी लक्ष्य, व्हाट इज एलॉइंग? जिंक और कॉपर का मिक्सचर और स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय. हाँ जी अर्शिया बताइए. It is mixing of iron with any other substance या any other metal to make a new substance. Other metal to make a new substance. For example, stainless steel. Stainless steel जो है वो आयरन का ही सब्सटेंस है, उसमें आयरन होता है. अगर आप देखते हो तो कई बार आपको लगता भी है कि ये आयरन ही है, बट इट इज एन एलॉय. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट्स? सो दैट इज अबाउट द रस्टिंग. हाँ जी, व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील कौन कौन से मेटल्स का एलॉय है? इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, पहले तो आयरन, जब हमने स्टार्टिंग यहीं से किया है कि आयरन के एलॉयज बनाने हैं. निकल और मैग्नीशियम, और चलो फॉर द टाइमिंग मैं लिख रही हूँ MgO. हाँ जी बच्चे प्लीज नोट डाउन, ये Mg होता है मैग्नीशियम, लेकिन ये वाला जो हमारा स्टेनलेस स्टील है इसमें मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज होता है, और उसका फॉर्मूला आइदर तो Mn होता है, Mg नहीं होता. ठीक है, Mg जो होता है दैट इज मैग्नीशियम. ये नोट कर लो, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग भी है हमें. मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ना हमने, वो भी है. Mn होता है स्टेनलेस स्टील में, Mn होता है, Mn रेफर्स टू मैंगनीज. तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, इसके अलावा कार्बन, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं. दीज आर दी
elements from which the alloy of stainless steel is to be made. ठीक है, इनकी कितनी परसेंटेज डालनी है ये डिपेंड करता है आपके स्टील की क्वालिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, हाँ जी, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है बेटे, एक और इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज व्हाट हैपेंस इफ आई कीप द आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्लू। देखा है सबने? नहीं देखा? चलो मैंने तो दिखाया था, मैंने तो प्रॉपर एक्टिविटी सारी करके दिखाई थी, पर जिसने नहीं देखा कल मैं दोबारा मंगवा लूंगी, जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर। ठीक है जी। मैग्नीशियम का नहीं, मैं दोबारा करके दिखाऊंगी, कॉपर सल्फेट वाला आपको दोबारा दिखा दूं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है एक्टिविटी, सॉरी सेकंड केमिकल चेंज जो हमने करना है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन आयरन and copper sulfate, iron nail and copper sulfate. What happens? Firstly, please note down copper sulfate का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4. It is of blue color. बिल्कुल ठीक है बच्चे, इट इज ऑफ ब्लू कलर, और बड़ा अच्छा सा ब्लू कलर होता है, क्लियरली ब्लू कलर होता है, दैट आई विल शो यू टुमारो। एंड व्हाट हैपेंस इफ आई विल ऐड आयरन टू इट? Fe represents iron, Cu copper and SO4 represents sulfate. ठीक है। When I will add, what is the original color of iron? Almost black, है ना? Almost black. And when I react these two substances after some time, what we will observe? We will observe the iron sulfate, or it is usually green in color, bluish green color का हो जाता है बेटा ये, और साथ ही साथ एक जो आपके आयरन की नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता है, इट बिकम्स ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है वो ब्राउन कलर की क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, दिस इज एन सिंपल एक्टिविटी, और इसमें हमने क्या करना है, वी विल जस्ट कीप द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड व्हेन वी ऐड इट वी कीप इट फॉर 2-3 minutes. What we observe our solution, blue color solution changes to green color. However, the black color of iron nail turns to the brown. आयरन नेल खत्म नहीं होती है, उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। ब्राउन कलर क्यों आता है? क्योंकि कॉपर यहाँ से निकल जाता है और वो कॉपर जाके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जितना जितना पार्ट उसका कांटेक्ट में होता है, सिर्फ आउटर सरफेस कांटेक्ट में होती है, इसलिए आउटर सरफेस पे ये होता है। क्लियर? This is your second equation. This type of change is also called as chemical change. और बेटे ये वाली जो रिएक्शन है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक मेटल जो है कॉपर का, वो निकल के उसकी जगह दूसरा लग रहा है। ये हो रहा है ना, एक एलिमेंट निकल के उसकी जगह दूसरा मेटल सेटअप हो रहा है यहाँ पे, है ना? और ये रिवर्सिबल नहीं है, इट कांट बी रिवर्स्ड बैक। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं, ये एक तरह से डिस्प्लेस कर रही है, जगह को साइड कर रही है ना, अपनी जगह बना रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है, मतलब डिस्प्लेस करती है। तो ये ध्यान रखना, दीज आर दी रिएक्शंस जिसमें से एक ऑब्जेक्ट निकल के दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी जगह ले ले। ठीक है? So this type of reaction is also called as a chemical change. हाँ जी बच्चे, any doubt in this? Now let's come to the another reaction. एक ये थी हमारे सिलेबस में, एक और रिएक्शन है
that is of magnesium ribbon. As we had discussed, I have shown you the magnesium ribbon. What is the color of magnesium ribbon? याद है किसी को? White, silver सा white था. What is the color of magnesium ribbon? Grayish white. Magnesium ribbon. What happens when I burn this magnesium ribbon? जो बर्निंग होती है वो किस तरह से होती है? बर्निंग के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन. फायर होती बर्निंग है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन. और अगर मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, नेचुरली इट स्टार्ट्स बर्निंग. और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, मुझे याद है मैंने यहीं पे सिलेंडर मंगवाया था, और जो बच्चे क्लास में थे उन्होंने शायद ध्यान से देखा होगा, वो एकदम से जल गया था. याद है कुछ? इट जस्ट स्टार्टेड बर्निंग. और जब वो बर्न हुआ था, बर्न होके जो नया सब्सटेंस बना था, व्हाट वाज दैट? ऐश. दैट इज ऑफ, हाँ नीचे गिर गई थी हमारी, कलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि सिलेंडर बड़ा था. इट वाज सिंपली MgU. ठीक है, 2 mg इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं. लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया, एक बात याद रखना बेटे, जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो ना, आप कभी भी किसी के पीछे नहीं लगा सकते. सॉरी, फॉर्मूला शुड रिमेन द सेम. आपने कभी भी किसी भी केमिकल के पीछे, किसी भी कंपाउंड के पीछे फॉर्मूला नहीं लगाना. जैसे H2O है, आप कहो कि O को बैलेंस, O कहीं पे ज्यादा आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगा दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा. फॉर्मूला आपने चेंज नहीं करना, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पे O मेरा बैलेंस नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे 2 O है और यहाँ पे 1 है, तो मैंने सिर्फ आगे लगाना. ठीक है, आगे लगा के ये क्या बन गया? 2 MgO. अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और इसके साथ भी, Mg का सिस्टम हिल गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया. क्लियर? प्लीज नोट डाउन, ये प्रॉपर आप टॉपिक है आपका, दैट यू हैव टू डू. जब भी आपने कोई भी इक्वेशन बैलेंस करनी है तो ध्यान रखना पीछे आपने कुछ नहीं लगाना. सपोज इफ सम स्टूडेंट सेज ये 2 लगाने हैं तो इसको MgO2 कर दे, नहीं, ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला किसी भी चीज का फिक्स हो, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं करते. ठीक है, हाँ, अगर आप आगे लगाते हो ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि उस कंपाउंड के या उस एलिमेंट के ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, किसी के कम ले लिए. जैसे हम H2O की बात करते हैं, हम बात करते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का. ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आगे आपका पहले वाला, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपने, Mg प्लस O2 गिव्स MgO. और MgO क्या है? बेस है, अभी कुछ नहीं है, है ना. What happens when I add it in water? MgO मैंने लिया और इसमें मैंने वाटर ऐड किया, क्या बन गया? MgOH ट्वाइस. हाँ जी बच्चे, प्लीज एक चीज और, आपने जब भी कोई भी इक्वेशन लिखनी है उसके नीचे उसके नेम्स जरूर लिखना. टिल 7th क्लास एटलीस्ट नेम्स लिखने की कोशिश करो. मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसे? हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा तो इट मींस वंस. जैसे यहाँ पे MgO है ना, दिस इज 1. ठीक है, हाँ, कैसे यहाँ पे एक ही, हाँ, ये फॉर्मूला होता है बेटे. ये होता है कि बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो अकेली एग्जिस्ट नहीं करती. अगर आप अकेला O लेते हो ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं होता.
आपने शुरू से जब से पढ़ना शुरू की होगी साइंस, आपको तब से टीचर्स कह रहे हैं O2 रेफर्स टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला आइसोटोप नहीं एग्जिस्ट कर पाता, ये हमेशा एक अपनी साथ वाली ऑक्सीजन लेके उसको कंबाइन करके O2 बना लेता है। इसकी एग्जिस्टेंस जो है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए इसका फॉर्मूला शुरू से ही O2 है। ठीक है जी। MgO मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, magnesium oxide, when it gets reacted with water it will form magnesium hydroxide. हाँ जी बच्चे, हाइड्रोक्साइड। What is the nature of magnesium hydroxide? Yes, please stand up. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या नेचर है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? एसिड, न्यूट्रल, ना एसिड है ना बेस है। एक मिनट, हाँ जी लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या नेचर है? नेचर मींस अगर हम साइंस के बेसिस पे चले, एसिड बेस या न्यूट्रल? एसिड बेस तो याद है ना, जिससे लिटमस का कलर चेंज हो जाता है, एसिड जो खट्टे होते हैं। हाँ, तो ये क्या है, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है या कुछ भी नहीं है? एसिड बेस कंबाइंड है। हाँ जी, बेस। तरुण, जिसने कभी अनम्यूट ही नहीं करना। तरुण, अक्षित, हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मनराज, जसलीन राइट, न्यूट्रल। अक्षित, जलश, मैम बेस। बेस। हिमांशी, प्लीज सिट डाउन ऑल ऑफ यू। हाँ जी दृष्टि, बेस। देखो बच्चे, कई बच्चे तो न्यूट्रल कह रहे हैं, कई बेस कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बेस कैसे है? चलो आपने बोला बेस है, कैसे है? OH, सिट डाउन, बैठो। हाँ जी बच्चे जी, पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा सुन लो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। जितने भी एसिड्स होते हैं ना, उनके पास बेसिकली अभी तक ये समझ लो H आयंस होते हैं, हाइड्रोजन होता है। जैसे HCl, H आ गया, H2SO4, H आ गया, HNO3, H आ गया। अभी तक फॉर द टाइम बीइंग 7th क्लास तक ये समझो कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है? पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस जो रिप्लेस होते हैं। और जितने भी बेस होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। विनेगर है आपका, एसिड है जो घर में यूज करते हो। बेस, अगर हम बेस की बात करें तो बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है? मोस्टली they contains OH negative ions. For example, MgOH आ गया, OH दिख रहा है यहाँ पे, NaOH, OH आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? So these all are a type of bases. कम से कम इतना याद रखना बेटा, एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, बेस वो होता है जिसमें OH होता है। और H, प्लीज ये चीज नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही है। H रेफर्स टू एसिड, है ना, और OH रेफर्स टू बेस। बेसिकली H के ऊपर हम पॉजिटिव लगाते हैं, OH के ऊपर नेगेटिव। क्यों लगाते हैं ये आप जैसे जैसे आगे करोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन गया? HOH
यानी दूसरे वर्ड्स में इसको मैं H2O लिखूं। चलो anyhow, come back. Let them do whatever they are doing. हाँ जी, come back to the class. ये वाला MgOH twice ये फॉर्मूला है बेटे। अभी क्योंकि आपने वैलेंसीज नहीं की तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन पर नहीं जाऊंगी। फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड दैट, क्योंकि अगर मैं वैलेंसी एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो प्लीज ये चीज नोट करना, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, और वाटर इज वन ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंस। उसमें ना तो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना बेसिक होता है। ठीक है जी, और बेस का मीनिंग क्लियर है सबको? ठीक है जी, अब एटलीस्ट इतना तो बता दोगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उनके बेसिस पे चले तो MgOH जो है वो हमारा बेस है। हाँ जी, अगर ये हमारा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग इट इन वाटर, आप सबको याद होगा, जो बच्चे स्पेशली क्लास में जिन्होंने लाइव देखा था, जो ऑनलाइन थे उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो लाइव देखा था, मैंने सामने डस्ट उठा के मैग्नीशियम की डस्ट पानी में डिसॉल्व की थी। आफ्टरवर्ड आई हैव केप्ट अ लिटमस पेपर ओवर देयर। लिटमस पेपर क्या था, याद है किसी को? What is litmus paper? It's a type of indicator. एक तरह का इंडिकेटर था जो मुझे बताता था। अब देखो ये वाले तो फॉर्मूलाज है, अब मेरे पास एक लिक्विड पड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा वो एसिड है कि बेस है? एक गिलास में आपके पास विनेगर है, विनेगर व्हाइट कलर का देखा ही होगा सबने, है ना? और एक वाटर है, मुझे क्या पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? या तो मैं टेस्ट करके देखूं, बट एवरीथिंग कांट बी टेस्टेड। तो वो चीज हमें कैसे पता चलती है? वो चीज हमें पता चलती है थ्रू दी हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, और वी कैन से इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आप सबको करवाए हुए हैं लैब में। हमारे पास सबसे कॉमन इंडिकेटर जो है दैट इज लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर को आप एसिड में डालते हो, क्या चेंजेस होते हैं लिटमस पेपर में? लिटमस पेपर के क्या चेंजेस होते हैं इंडिकेटर में? हाँ जी, नहीं, लास्ट सेकेंड बेंच। एसिड में क्या चेंज होता है और बेस में क्या चेंज होता है? हाँ जी, एसिड में जाके ब्लू कलर चेंजेस टू, और इन द बेस रेड कलर चेंजेस टू, ठीक है जी। इन एन एसिड ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, इन एन बेस रेड कलर चेंजेस टू ब्लू। और जब हम लिटमस पेपर को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, राउंड बच्चे, when we add magnesium litmus paper in magnesium hydroxide, it simply changes red litmus paper to हाँ जी, डाउट है? यस बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? That is called as formation of magnesium hydroxide or a base. बेटे ये सारी इक्वेशंस आपकी बुक में गिवन है, and tomorrow we will discuss about it, and most probably your chapter will be completed. Till then